So the next era is globalization focus era, and the timeline for this era is 2005 to 2021. Okay, previously we have discussed about cost focus era. After that we have discussed about quality focus era. After that we have discussed about customization focus era. Okay, so these are certain means points that we may see in this era, that is globalization focus era. Like first is global supply chain. Means in this era, means from 2005 onward, we have seen that companies are managing their supply chain globally. Okay, like you may take here example of Boeing. Have you heard about Boeing? Yes. Boeing manufacture generally fighter planes. Okay, and it deliver its fighter planes to the countries. Okay, so by managing their global supply chain, they assemble that fighter plane and provide it to the countries basically. Okay, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से रॉ मटेरियल लेकर के फाइटर प्लेन को असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद ये कंट्रीज को सेल करते हैं. ओके, सो बाय दिस वे दे आर मैनेजिंग देयर ग्लोबल सप्लाई चेन. ओके, एंड लॉट मेनी ग्लोबल कंपनीज आर देयर नाउअडेज लाइक ब्रिटानिया, HUL, ओके, यूनिलीवर एंड दिस Procter and Gamble, Walmart. Okay, so many more companies are there, okay, that are managing their supply chain globally. Okay, Ford, Toyota. Okay, so all these companies are there that are managing their supply chain globally. Okay, so that this type of business has been considered during this era, means 2005 to 2021. Means nowadays we are in globalization focus era. Okay, next is growth of transnational organization. Here I am giving you example of Amul, Mother Dairy. Okay, these companies after 2010, okay, they have started their operations across the boundary of their home country, that is India. Okay, and nowadays if you see that Amul is having presence in more than 20 countries. Okay, and if you talk about Mother Dairy, so it is also having presence in more than 40 countries. Okay, and even if you talk about Haldiram, Bikaner wala, so they are also having their presence in transnational. Okay, transnational means across the border of their home country basically. Okay, so these are some of the examples. तो ये companies हैं जो कि अब इसके beyond, even if you see in banking sector है ना, SBI, PNB जैसे बैंक भी अब आप देखिए तो they are providing their services out of the country है ना, इंडिया के बाहर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, जो उनके इंडियन कस्टमर्स हैं और इवन फॉरेन कस्टमर्स हैं उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. So they are now also trying to become global. Okay, so this is basically growth of transnational organization has been noticed in this era, globalization focus era. Okay, third is instant communication. As I have told earlier that the main enabler behind globalization is internet. Okay, and better logistic service. Okay, so internet provided you instant communication. Okay, nowadays most of the companies are having internet enabled or internet enabled ERP solutions basically. Okay, so by that way they can see all of their operations in one place. Okay, means if you are owning you are owning any outlet across the globe, you can see all the details related with this type of instant communication. Okay, like इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. ठीक है, पहले क्या होता था, आप टैक्सी ड्राइवर के पर्सपेक्टिव में सोचिए, जब लोग जनरली टैक्सी का बिजनेस करते थे या रेस्टोरेंट का बिजनेस करते थे तो जनरली बोला जाता था कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्किल सेट का होना जरूरी. ठीक है, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि आप बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे और आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो जनरली जैसे कोई कैब ड्राइवर है तो
अगर कोई किसी की कैब फ्लीट मैनेज कर रहा है तो उसने खुद टैक्सी चलाई होती थी, तब जाकर के वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाता था। ठीक है, आपके टाइम में ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके टाइम में क्या है, ओला है, उबेर है, और इवन आप देख रहे हैं या जितने भी ऑनलाइन ये टैक्सी पोर्टल्स हैं, तो अगर आपने अपनी कोई भी कैब इसमें रजिस्टर करा रखी है तो यू में सी इवन एवरी बुकिंग ऑन रियल टाइम बेसिस, है ना। आप रोज का रोज देख सकते हैं कि मेरे ड्राइवर को कितनी बुकिंग मिली है, कितना पैसा उसने अर्न किया है, दैट यू कैन सी थ्रू this point, instant communication. Okay, real time communication. Okay, so this is an enabler in this globalization process. Is it clear? Next is sustainability. What is sustainability? Basically sustainability survivability, है ना, मार्केट में सर्वाइव करना, मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बने रहना। ठीक है, कंपटीशन के बावजूद भी मार्केट में अपनी पोजीशन को बनाए रखना, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज कोलगेट, है ना। स्टार्टिंग में आप देखिए कोलगेट ने उन सॉल्ट, चारकोल, इन सभी को क्रिटिसाइज किया, और बाद में अब आप देखिए तो उन्हीं का यूज कर रहे हैं। इवन आयुर्वेदा, है ना, आयुर्वेदा का भी यूज किया, और इवन हर तरीके के पेस्ट इनके पास अवेलेबल हैं। जिस जिस सेगमेंट में इन्होंने देखा कि हाँ कंपटीटर आ रहा है, उस सेगमेंट में इन्होंने अपनी नई प्रोडक्ट लाइन बनाई। ठीक है, तो दैट इज व्हाट बेसिकली सस्टेनेबिलिटी। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं। अभी आप रूह अफ़ज़ा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। लगभग 80-90 ईयर्स तक इन्होंने जो अपना फ्लेवर था वो सेम रखा। ठीक है, अभी रिसेंटली पिछले 5-7 सालों में मैं देख रहा हूं कि इन्होंने भी 2-3 नए फ्लेवर मार्केट में लॉन्च किए हैं। ठीक है, क्यों लॉन्च किए हैं? जस्ट बिकॉज सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि एक ही फ्लेवर से आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बने रह सकते। अमूल मदर डेयरी पहले रॉ मिल्क बेचा करते थे, है ना, जो लिक्विड मिल्क है, फ्लूइड मिल्क, वही तो बेचते थे टोकन मिल्क के फॉर्म में, है ना, टोन्ड, डबल टोन्ड, फुल क्रीम, इस फॉर्म में बेचते थे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बटर चीज़ वगैरह का बिजनेस करते थे। लेकिन अब आज के टाइम में देखिए तो इनके पास इतनी लंबी प्रोडक्ट लाइन है। अब आप देखिए ये लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने हल्दी मिल्क, जिंजर मिल्क और तुलसी मिल्क वगैरह फ्लेवर लॉन्च कर दिए। सो दैट इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइव करने के लिए, है ना, मार्केट में कंपटीटर के साथ बने रहने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए यू नीड टू बी सस्टेनेबल एनफ। ओके, so this is also a factor that is nowadays we are considering in this globalization era. Okay, next is ethics in global workplace. What is ethics? Basically ethics is an intrinsic characteristic. ठीक है, एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स, है ना, ये सब कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये इनबिल्ड है, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आप अगर ईमानदार हैं तो हैं, ठीक है, ये आपके इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो एथिक्स इन ग्लोबल वर्क प्लेस, हालांकि इसमें आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी काम करती है, ठीक है, थोड़ा बहुत फियर भी काम करता है, और कई सारे पैरामीटर्स हैं जो कि इस पे वर्क करते हैं। आजकल आप देखिए, इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। नाउअडेज कंपनीज आर सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। ठीक है, उसमें होता है IQ, इंटेलिजेंट कोशिएंट, ठीक है, EQ, इमोशनल कोशिएंट, एंड SQ, स्पिरिचुअल कोशिएंट। So why they are considering EQ and SQ? Just because to ensure that the person they are hiring is ethical one or not. ठीक है, टाटा का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन केस ऑफ 2611। ठीक है, जब ये केस स्टडी इसमें इसको स्टडी किया गया कि क्या ऐसा था टाटा के एम्प्लॉयज में कि जब ताज होटल पे अटैक हुआ तो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और जा करके और दूसरे लोगों को बचाया। ठीक है, तो इस स्टडी में ये बात निकल के सामने आई कि जो नए एम्प्लॉय भी थे उन्होंने भी ये काम किया। तो किस वजह से किया? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई एथिक्स, है ना, हाई वर्क एथिक्स, हाई मॉरल वैल्यूज, है ना, उसकी वजह से उन्होंने वो काम किया। तो फिर टाटा से पूछा गया कि अल्टीमेटली ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा हमारी हायरिंग प्रोसेस में ही ऐसा है कि वी आर फोकसिंग ऑन कैरेक्टर, है ना। हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो हम क्या जज करते हैं? कैरेक्टर। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। दैट इज बेसिकली एथिक्स इन ग्लोबल वर्कप्लेस। ठीक है, इसलिए ईमानदार लोगों को, एथिकल लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसलिए आप देखिए तो ये ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का पेपर आपके लिए, सभी के लिए कंपलसरी है, जितने भी ये ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, ठीक है, और PG कोर्सेज हैं, इन सभी में ये कंपलसरी कोर्स की तरह चलाया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इसकी डिमांड है।
ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स. व्हाट इज लॉजिस्टिक्स? बेसिकली logistics, I have told earlier that there is a difference between logistics and transportation. Okay, these two terms are different. Means transportation, in terms of transportation there is no liability, transporting something from one place to another place. Okay, and what is logistics? To ensure the means which characteristic the product or product have should maintain during transit. Okay, so that is basically logistics. तो आप देखिए लॉजिस्टिक्स एक बिगर डोमेन है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इसका पार्ट है. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का. सिंपली पहले जब ट्रांसफर वगैरह होते थे तो हम क्या करते थे, ट्रक हायर करते थे और उसमें सारा सामान खुद ही पैक करके लोड करके और चल देते थे. और फिर इसके बाद इन ट्रांजिट बीच में कभी कुछ बम आया या कुछ मतलब रोड भी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो जनरली क्या होता था कि कभी कुछ सामान डैमेज हो गया, कभी कुछ डैमेज हो गया, तो उसकी किसी की कोई गारंटी नहीं रहती थी. ट्रांसपोर्ट की रहती थी कि हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचाना है, वो मैंने पहुंचा दिया. ठीक है. अब लॉजिस्टिक्स में थर्ड पार्टी पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं, है ना. तो पैकर्स एंड मूवर्स क्या करते हैं, आप बता दीजिए कि मेरा यहाँ से यहाँ को नागपुर से दिल्ली ट्रांसफर हुआ है. ठीक है. तो वो क्या करेंगे, अपना रेट बता देंगे जो कि ट्रांसपोर्ट का 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगा. लेकिन आपका जो भी सामान है वो पूरी तरीके से इंश्योर होता हुआ जाएगा कि हाँ ये जो आपका लगेज है, ठीक है, जो भी आपका वो पूरा प्रॉपर तरीके से पैक करके, है ना, वो ले जाते हैं. मल्टी लेयर पैकिंग होती है, सभी को पता है ना. पहले फोम में उसको पैक करेंगे, उसके ऊपर से बबल सीड्स, थर्माकोल, बहुत सारे मतलब उसके पास पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, उन सभी का वो लोग इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपरली पैक करके और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है. तो दैट इज बेसिकली लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर. और आज के टाइम में लॉजिस्टिक्स सर्विसेज आप देखिए, ई कॉमर्स का बैकबोन लॉजिस्टिक्स, ग्लोबलाइजेशन का बैकबोन लॉजिस्टिक्स. फेडेक्स नहीं होता या इस तरीके के प्लेयर्स नहीं होते तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं था. इंटरनेट नहीं होता तो पॉसिबल नहीं था. तो इंटरनेट और लॉजिस्टिक्स ये बैकबोन है ग्लोबलाइजेशन. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चर. व्हाट इज क्रॉस कल्चर? बेसिकली nowadays it is globalization focus era, so each and every employee think about to work on global atmosphere. okay, जब भी आप किसी कंपनी में अभी ज्वाइन करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे बाहर जाने का मौका मिले, फॉरेन कंट्रीज घूमने का मौका मिले, वहां का कल्चर समझने का मौका मिले. ठीक है. तो इस केस में आप देखिए जनरली अब कंपनीज क्या करती हैं, आपको क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग दे करके भेजती हैं. ठीक है. जैसे आपको अगर दुबई जाना है तो दुबई में आपको इवन सिंपली अगर टूर एंड ट्रेवल के लिए भी जाएंगे तो वहाँ के रूल्स और लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. तो पहले से ही आपका गाइड आपको बता के रखेगा कि यहाँ आपको किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी की फोटो नहीं खींचनी है, किसी को भी घूरना नहीं है ना, कहीं इधर उधर आपको कुछ भी डंप नहीं करना है. ठीक है. तो ये सब बेसिक्स हैं जो कि आपको सिखाए जाते हैं. और इसके अलावा क्रॉस कल्चर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कैसे किसी के साथ ग्रीट करना है, कम्युनिकेशन के क्या क्या मेथड होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेथड्स होते हैं. ठीक है. ग्रीट करने का तरीका अलग होता है, बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, बिजनेस आवर्स अलग अलग होते हैं. ठीक है. कुछ कंट्रीज में अर्ली मॉर्निंग वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और मिड मतलब कह सकते हैं आफ्टरनून तक सारा कुछ वाइंड अप हो जाता है. ठीक है. उसके बाद काम नहीं करते हैं. कुछ कंट्रीज में आप देखिए तो 5 डेज वर्किंग है, कुछ कंट्रीज में 4 डेज भी वर्किंग है. ठीक है. तो ये सभी अब 4 डेज वर्किंग है तो उसके वर्किंग आवर क्या होंगे. कुछ जगहों पर जो वेजेस या सैलरीज मिलती हैं वो वीकली आया करती हैं. ठीक है. जैसे यूएसए में है या कनाडा में है, वहां पर जो सैलरीज हैं वो वीकली आती हैं. ठीक है. वीकली जो भी है आपका वीक का पेमेंट हो जाएगा और आपके जो वीकेंड पर आप चाहें तो उसको खर्च कर सकते हैं. ठीक है. तो उस बेसिस पर तो lot many cross culture related issues are there and that you should focus while you are in this era globalization. okay. इसलिए आजकल देखिए तो आप सभी लोग फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी लेते हैं, है ना. कुछ ना कुछ एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं जिसका आपको स्कोप हो. जापान जाना है तो बिना JLPT के जो लेवल हैं उनको क्लियर किए आप जापान नहीं जा सकते. ठीक है. अगर 6 मंथ या और उससे ज़्यादा टाइम रहना है, सिर्फ ट्रैवल के लिए जाना है तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको रहने के लिए जाना है तो JLPT के लेवल आपको क्लियर करने पड़ेंगे. ठीक है.
चाइना जाना है, वहां पर उनकी लैंग्वेज, जिस भी कंट्री जाना है वहां पर आपको उनकी लैंग्वेज सीख के जानी पड़ेगी। ठीक है, यूएस यूके जाना है, वहाँ टॉफल आइलेट वगैरह क्लियर करके जाना होगा। तो दीज आर सम लिमिटेशंस एंड दैट यू should know in advance, okay, so that you could prepare yourself to go there. Okay, so these are some cross cultural issues that has been taken into consideration while we are working in this era, that is globalization.